सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आई एम डिस्कसिंग द एंगुलर मोमेंटम. So I'll focus upon both the things, like how to calculate angular momentum and how to apply that in the law of conservation of angular momentum, right? So now see, first of all, the calculation of angular momentum. So you'll have to calculate angular momentum in three different cases. One is angular momentum. I'll denote it by the term L. It's usually denoted by vector L or by vector J. So here I'll denote it by L. So you see the calculation of angular momentum L for a particle means what कि आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और आपको उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. सो व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन इज दैट एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट व्हाट पॉइंट. दैट विल हैव टू बी कैलकुलेटेड अबाउट ए पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस. ठीक है ना. So angular momentum L will have to be calculated about a point or about an axis. Is that clear? Now see, first of all I tell you how to calculate that in the scalar form. Like say this is a particle of mass m and moving along this direction with the velocity v. The mass of the particle is n and it's moving along this direction with the velocity v. And you have to calculate angular momentum about the point O, or the axis is passing through the point O like this. You have to calculate about this. Then see in the scalar form, angular momentum L equals to, this angular momentum L equals to momentum mv into, this is the line of action of the momentum. The momentum का line of action it is this. So draw the line of action of the momentum and draw perpendicular on this line from the point O. This is R. This perpendicular distance of what? Not of the particle. Particle की distance नहीं है ये distance किसकी है? जो momentum है, momentum vector के particle चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, particle का जो momentum vector है, ये drawing perpendicular on the line of action of the momentum, that is R. So its magnitude will be what? mvr. Now see, from here you can see that this, about this point we are calculating. So when particle goes like this, it looks like what? It's a clockwise motion. जब ये particle यहाँ पे जा रहा है, so इसका motion कैसा हुआ? Clockwise motion about this point. So clockwise sense हुआ angular momentum का point O के about, और angular momentum will always be directed along what? Axis. Axis of rotation. जैसे axis of rotation ये है, it will be directed along the axis of rotation. So when it is going, it's clockwise. It will be directed along the axis away from you, मतलब अंदर की ओर, into the plane of the board. Is that clear? This sense of angular momentum about this point is what? It's clockwise. So because it is clockwise, so it will be directed what? Along the axis and away from you, अंदर की ओर directed होगा. ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया स्केलर फॉर्म में. अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन, अगर पैरामीटर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, जो कि यूजुअली आई एम टेलिंग यू, आपको डायरेक्शन अलग से निकालनी होगी, मैग्नीट्यूड अलग से निकालना होगा, और कैलकुलेट जनरली स्केलर फॉर्म में करना होगा. इन डायरेक्शन यू शुड नो सेपरेटली. इज दैट क्लियर? जैसे आप देखेंगे, मैं अब वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना. सो यहाँ पे आप ये समझ गए एल इक्वल्स टू mvr कैसे होगा. नाउ सी, वेक्टर फॉर्म में सपोज इज ए पार्टिकल ऑफ मास m, इट्स मूविंग along दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, and velocity v is given to you in the I cap, j cap, k cap form. You have to calculate angular momentum out at point P1, and this is the origin of coordinates. Now see, the point about which you have to calculate the angular momentum. Here angular momentum is not to be calculated about the origin of coordinates. It's to be calculated about what? About the point P1. So look at this. Position vector of point P1 is vector R1, which will be in the form of I cap, j cap, k cap. In position vector where the particle is at present moment. अभी पार्टिकल जहाँ है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 है. Is that clear? Then angular momentum, this P angular momentum L will be equal to, look at this, R cross P. R cross P. So R is what? R is vector R2 minus vector R1 cross P. Cross P is what? M vector V. Is that clear? So because this is a vector expression, in the vector expression the direction as well as magnitude will come, both the things will come. So I just repeated, look at this.
The position vector of particle was r2 and the position vector of the point p1 about which angular momentum was to be calculated is vector r1. So angular momentum L about this point will be equal to L r cross p, where r is what? R is the radius vector of the point, radius vector of the particle about the point p1. So radius vector of the particle about the point p1 will be what? It is this vector r. It is this vector r. Is that clear? So r will be equal to what? R2 minus r1, that will be r. It becomes r2 minus r1 cross mv. This is in the वेक्टर फॉर्म. ये जो हुआ ये वेक्टर फॉर्म में है. अब आप देखेंगे नाउ सी. सो दिस वाज फॉर ए पार्टिकल एंड सी नाउ सी फॉर ए सेकेंड इज फॉर ए बॉडी, फॉर ए rigid body. अच्छा, बिफोर दिस आई टेल यू वन थिंग. लाइक सपोज यू गेट ए पार्टिकल ऑफ मास m moving in a circle of radius r about this axis, that is about this point, with a speed v. Now see, second thing I am going to tell you is about the when something rotates about a point or about an axis. तो जैसे आपको लगता कि अब रोटेशन के केस में लेना कैसे, ये पार्टिकल है तो इसके लिए आप पार्टिकल के तरीके से ही निकालो. ये पार्टिकल है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v सोर है और रेडियस वेक्टर r जो इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, मतलब एक्सेस पासेस थ्रू दिस पॉइंट. तो बस आप सीधे इस पॉइंट से perpendicular distance is what? R. So that will be what? mv into r. Sense of rotation is what? Anti-clockwise. So it will be along the axis towards you. The rotation sense is what? Anti-clockwise. So it will be along the axis. It's always along the axis. And in this case, it will be what? It will be towards you. Now look at this. अब आप देखेंगे. Now second is for a body rotating about a fixed axis. For a body rotating about a fixed axis. For a body rotating about a fixed axis. So see, for a body rotating about a fixed axis, it will be, this is the body and this is the axis that passes through its center, but this is not necessary that axis must pass through the center. Here I have taken that the axis passes through this point. In body about this axis is rotating with an angular velocity omega, and moment of inertia of this body about this axis is I. So what matters is body may rotate about any fixed axis, means axis itself is not moving. Axis is neither translating, axis is nor rotating. It is fixed, and about that fixed axis body is rotating with an angular velocity omega, and moment of inertia of the body about this axis is what? It's I. Then its angular momentum will be what? L. This will be I omega. So it's very simple to calculate. Means you should know that what is the moment of inertia of that rigid body about that axis. You know I, omega is already given, so I into omega. Now about the direction. And you see its sense of rotation is what? Anti-clockwise. So as I told you, because it is anti-clockwise, angular momentum is an axial parameter. It is always directed along the axis of rotation. So it will be along the axis of rotation, and that will be what? Towards the observer. When I see it from the upper side, then I find that its rotation is what? Its rotation is in the anti-clockwise sense. You see, when I see it from the upper side, its sense of rotation is what? Anti-clockwise. So it will be directed upwards. आप समझ गए ना इसे? जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी-क्लॉकवाइज. और एंटी-क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? along the axis towards the observer. Observer ऊपर से डिसाइड करता कि एंटी क्लॉकवाइज है, so along the axis in the upward direction. Is that clear? This becomes magnitude and this is a direction. This is a direction and this is the magnitude. Now see in the third case, angular momentum for a rolling body. Angular momentum for a rolling body. This is the third case. So suppose this is a body. I'm not telling you right now that what the body is. It's a disc, it's a sphere, or it's a hollow sphere, it's a cylinder. This is a body, and say its mass is m, its radius is r, and the body is rotating about its central axis with an angular velocity omega,
and the axis itself is translating with the velocity v. Is that clear? This may be pure rolling or may not be pure rolling. If it is pure rolling, then what will happen? If it is not pure rolling, what will happen? I'll tell you right now. Right now the parameters are what? The axis itself is translating in the forward direction with the velocity v. जो इसकी एक्सिस है वो आप देखेंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही, एक्सिस भी आगे बढ़ रही है विद वेलोसिटी v, और उस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है विद इन वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर. इज दैट क्लियर? अब सपोज यू वांट टू कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट. दिस इज अ पॉइंट P, this is the center of the disk O, this is the center of the rigid body O, and about which body is rotating, and this is the point P on the ground about which you have to calculate its angular momentum. So see, first of all I tell you it's scalar calculation, and generally you will solve it by scalar calculation. Take the directions separately and accordingly you will find the angular momentum. Look at this, it's like this. Angular momentum about point P, so L about P equals to vector L1 plus vector L2. Vector L1 plus vector L2. Now see, vector L1 is what? Vector L1 is the angular momentum of the body, angular momentum of the center of mass of the body about P. मतलब आपने बॉडी को एक पार्टिकल की तरह लिया. मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट. सो आपने पूरी बॉडी को एक पार्टिकल की तरह लिया और उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम P पॉइंट के अबाउट. ठीक है ना? मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखता हूँ. देखो, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अभी आपको बताया. मोमेंटम इज व्हाट? mv एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? r. P पॉइंट से इसके मोमेंटम वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मोमेंटम वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन है उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? r. सो दैट बिकम्स व्हाट? mv into r. It becomes this. Is that clear? It becomes mvr. And also we write here the direction. Like see, about this point, its sense of rotation is what? Clockwise. मैं इसके रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास m कॉन्सेंट्रेटेड है और वो पार्टिकल b स्पीड से सोर जा रहा, उसका इस पॉइंट के अबाउट जब ऐसे जाएगा, आपको रोटेशन का सेंस इस पॉइंट के अबाउट कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज. इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज मीन्स इनटू द प्लेन. ठीक है ना? मैं यहाँ पे केवल क्लॉकवाइज लिखता हूँ. आई एम नॉट राइटिंग डायरेक्शन. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और डायरेक्शन जो होगी वो एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो क्लॉकवाइज. ठीक है ना? नाउ सी, अब आप देखेंगे. अब L2, you see L2 is what? L2 is the angular momentum of the body, मतलब बॉडी जो रिजिड बॉडी है, बॉडी अबाउट angular momentum of the body. तो angular momentum of the body means what? रोटेशन वाला. angular momentum of the rotation of the body, rotation of the body about O. O जो उसका सेंटर है उसके अबाउट रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? जो भी इस बॉडी का डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप इस एक्सिस के अबाउट आई होगा, इनटू व्हाट? इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही, इनटू व्हाट? आई ओमेगा. अब इसका सेंस कैसा है इस एक्सिस के अबाउट? ये भी क्लॉकवाइज है, आप इसे भी क्लॉकवाइज लिख दो. दिस व्हाट? क्लॉकवाइज. आपने इसे भी क्लॉकवाइज लिख दिया. तो दैट मीन्स कि L1 प्लस L2 दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन सेम है. तो ओवरऑल जो इसका L था जो आपको कैलकुलेट करना था, L बिकम्स इक्वल टू व्हाट? इसके L आ गया mvr प्लस आई ओमेगा, और दोनों क्लॉकवाइज सेंस के हैं, तो आप बोलोगे along the axis into the plane. ठीक है ना? along the axis into the plane. एक्सिस के लॉन्ग होगी, यू आर द ऑब्जर्वर, एंड आपके लिए रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज. से अलॉन्ग द एक्सिस और आपसे अवे. ठीक है? अलॉन्ग द एक्सिस इनटू द प्लेन. इज दैट क्लियर? ठीक है ना? आप समझिए ना इस बात को. अलॉन्ग द एक्सिस एंड इनटू द प्लेन. इज दैट क्लियर? अब मैं इसे
कोई बॉडी का नाम देता हूँ सो दैट कि मैं कैलकुलेट करता हूँ। सपोज ये बॉडी क्या है, सपोज दिस बॉडी इज ए स्फीयर। सो व्हेन आई से स्फीयर, ओनली स्फीयर, जब भी एग्जामिनर बोलते हैं स्फीयर, सो दैट मीन्स व्हाट, सॉलिड स्फीयर। इफ इट हैड बीन ए हॉलो स्फीयर तो वो लोग मेंशन करते हैं हॉलो स्फीयर, इट्स ए स्फीयर, दैट मीन्स ए सॉलिड स्फीयर। और मास एम रेडियस आर, सो अब देखो ये टर्म क्या आ गया, एम वी आर प्लस आई बिकम्स व्हाट 2/5 एम आर स्क्वायर। मैं आपसे ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आई इसके इस एक्सेस के अबाउट लेना, आई इस एक्सेस के अबाउट नहीं लेना है, समझ गए ना। आई इस एक्सेस के अबाउट लेना आपको, आई इसके अबाउट नहीं लेना। जिसके अबाउट इसका रोटेशन है आप आई उसके अबाउट लो। सो आई इस सेंट्रल एक्सेस के अबाउट स्फीयर का क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वॉट ओमेगा। अब कंडीशन वो भी अप्लाई करता हूँ, इफ इट इज प्योर रोलिंग, ठीक है ना, इफ इट इज प्योर रोलिंग। तो अगर ये प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग में जो इसका एल हो गया, वेलोसिटी वी विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा आर। तो उस केस में अगर वो लोग आपको बोलते हैं प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग के केस में वेलोसिटी वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो फिर वो लोग आपको वी और ओमेगा दोनों अलग अलग से नहीं देंगे, दिल गिव यू ओनली वन पैरामीटर। जैसे उन्होंने बोला कि बॉडी इज गोइंग विद रोलिंग, जब वो लोग बोलते हैं कि बॉडी इज गोइंग विद रोलिंग, तो रोलिंग का मतलब उनका प्योर रोलिंग का ही होता है। अगर वो प्योर रोलिंग नहीं होती तो लोग बोलते कैसे, रोलिंग विद स्लिपिंग। सो बिकॉज दे आर नॉट मेंशन रोलिंग विद स्लिपिंग, दे से रोलिंग, सो रोलिंग मीन्स प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में वेलोसिटी वी विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा आर। सो इफ दे हैव गिवन यू द वी, तो आप इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू क्या कर दोगे, वी बाई आर डाल दोगे, एवरीथिंग विल कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वी। एंड इफ दे हैव गिवन यू द ओमेगा नॉट वी, तो ओमेगा आप निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी बाई आर। ठीक है, ओमेगा आपको गिवन है तो ओमेगा से वी निकालोगे ओमेगा आर, तो यहाँ पे ओमेगा आर डाल दोगे और यहाँ पे ओमेगा होगा। सो एवरीथिंग विल कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। सो प्योर रोलिंग वाली चीज़ याद रखोगे, उसमें ये वाला रिलेशन वैलिड होगा। आई की वैल्यू आपको डालनी इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है ना। अब देखो कई बार इस कैलकुलेशन को ऐसे भी करते हैं जो मैंने बताया ना आपको, L1 प्लस L2। जैसे इसमें कोई पॉइंट होगा जिस बॉडी के अबाउट बॉडी का जो मोशन होगा, ये तो आप समझ गए, मैं इसे रब करता हूँ। चलिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, सी लुक एट दिस, मेक दिस पॉइंट क्लियर। लाइक से वी हैव कैलकुलेटेड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P, पॉइंट P इज ऑन द ग्राउंड। जो पॉइंट P है दैट इज वेयर इट्स ऑन द ग्राउंड, इज दैट क्लियर। सपोज द पॉइंट P had not been on the ground, they take that the point P is here, somewhere at this point. Means the point P is in the somewhere in the body itself, वो यहाँ पे है। आपको इसका इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। जैसे कि बॉडी में इट्स नॉट ऑन द बॉडी, जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, रादर आपको जो पॉइंट P है इससे जैसे यहाँ पे देयर इज़ ए बॉडी ऐसे रोल करते हुए जा रही थी एंड यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है और आपको इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। ये जो पॉइंट P है ये यहाँ से ग्राउंड से h हाइट ऊपर है एंड यू वांट टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट H। बॉडी का मोशन वही था, रोल कर रही थी, मतलब ट्रांसलेशन भी था और साथ में जो था रोटेशन भी था। अब आप देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अब आपको कैलकुलेट करना इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ग्राउंड के सबसे नीचे वाला पॉइंट था उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना होता। बट अगर आपको ये ना हो कि कहीं आपको उसके अबाउट बिल्कुल याद हो गया, आपने मगअप कर लिया, मान लो कि कभी आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। यहाँ पे एक कोई ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल इस पॉइंट की हाइट h है और आपको इस पॉइंट P डैश के अबाउट कैलकुलेट करना है। हमारी डेफिनेशन बिल्कुल वही, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इसके सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट के अबाउट ये r माइनस h हो गई मोमेंटम वेक्टर, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी r माइनस h। सो L विल बिकम इक्वल टू व्हाट, दिस बिकम्स mv इंटू r माइनस h, ठीक है ना। मोमेंटम वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स, so perpendicular distance of the momentum vector from this point is what, this r, this h, so this is what, r minus h, mv into r minus h. Is that clear? Now see, plus what, plus angular momentum of the rotation about this point, so that is what, I omega, ठीक है ना, that is what, I omega. अब इस केस में अगर मान लो स्फीयर था, स्फीयर के लिए क्या हो गया, mv r minus h प्लस व्हाट, I ओमेगा, वही 2/5 एम आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फिर से वैल्यू डाल करके इसलिए दिखाई कि आपको कहीं ये ना लगे कि आपको आई इस पॉइंट के अबाउट लेना है। जब मैं बोलता हूँ, जब दो टर्म्स के फॉर्म में लेता हूँ, तो एक है यूल टेक द बॉडी इज मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, टेक इट लाइक ए पार्टिकल।
तो उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन वाला निकालो इस पॉइंट के अबाउट, इट इज दिस, प्लस देन बॉडी इज रोटेटिंग, आपने भी सेंटर ऑफ मास का निकाला, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी के रोटेशन का निकालोगे और इसका भी सेंस क्लॉकवाइज है, और जब ये पार्टिकल इस ओर जा रहा है इसका भी क्लॉकवाइज है, आपने दोनों का सम किया इस पॉइंट के अबाउट आई एंड ओमेगा, फिर से वही प्योर रोलिंग होगी तो वी कोस ओमेगा आर, तो वी और ओमेगा में से एक पैरामीटर नोन होगा उसके टर्म्स में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आप बोलो समझ गए ना। अब मानो कि आपको ऐसा करना होता कि जैसे अभी मैंने क्या बोला, बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम निकालना होता, बॉडी रोटेट कर रही है और आपको बॉडी के उसी पॉइंट के अबाउट ही निकालना है, बॉडी में ही कोई पॉइंट है, मतलब बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, बॉडी रोटेट भी कर रही है और आपको बॉडी के ऊपर ही कोई पॉइंट है, यू वांट टू कैलकुलेट अबाउट दैट पॉइंट ओनली, आपको उसी पॉइंट के अबाउट, जैसे ये पॉइंट है P1 या दिस पॉइंट इज P2 और उसकी कुछ पोजीशन आपको दे देंगे कि ये इसकी पोजीशन कैसी है। इज दैट क्लियर? तो आपको इस P1 के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये आप देखो कि ठीक से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, जब ये पॉइंट मान कि सपोज इट्स गिवन दैट इट्स प्योर रोटेशन इट्स रोलिंग, तो रोलिंग में क्या होगा, आप जब इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी दो वेक्टर्स का सम होगा, जिन दो वेक्टर्स का सम होगा वो दो वेक्टर्स क्या हुए, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसके अबाउट टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इस ओर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो इस ओर है, सो दैट इज व्हाट, इस ओर की वेलोसिटी इट इज ओमेगा इंटू आर, ओमेगा से रोटेट करा तो इस वाले पॉइंट के रोटेशन की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इंटू आर। आपने बिल्कुल वही कैलकुलेट किया, आपने क्या किया कि इस पॉइंट के अबाउट यू वांट टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, तो इस पॉइंट के अबाउट तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी होगी कि कितनी होगी, आपको इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी होगी कितनी होगी। आप देखें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर है। इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इंटू आर है। अगर मैं इसकी नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है वो तो इसकी वेलोसिटी वी है, अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा होता और ये वी स्पीड से आगे जा रहा और पूरा का पूरा वी स्पीड से आगे जाता तो ये वी स्पीड तो इसकी भी होती, अभी रोटेट भी कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर है। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये एंगल थीटा अगर उन्होंने दिया है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी व्हाट 180 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? दिस व्हाट 180 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी वी डैश आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। इज दैट, ये इसकी नेट वेलोसिटी इसके अबाउट आएगी। दो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना था, बट आई टोल्ड यू कि अगर हमें इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इट विल बी दिस, और जिस ओर भी इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा उस ओर होगा। आप यहाँ पे देखो, आपकी इस पॉइंट की, जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होना, इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट कितनी है, ओमेगा आर। तो अगर मान के आपके पास एक पॉइंट ए है, ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव वी है, तो बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव क्या होगी, माइनस वी। दैट मीन्स की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट कितनी होगी, ओमेगा आर अलोंग दिस डायरेक्शन, ओमेगा आर अलोंग दिस डायरेक्शन। मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, ओमेगा इंटू आर, ठीक है ना, ये वी आ गया, तो मास एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपने इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जो पॉइंट बॉडी में ही है, तो आपने पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाली, तो जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पॉइंट की आई, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इसकी आई, उतनी ही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इस पॉइंट के रिलेटिव होगी। दैट विल बी व्हाट, ओमेगा इंटू आर, और ये वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल, जैसे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल थी, इसकी वेलोसिटी सोर हो गई। सो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम आ गया मास एम वी आर। इट इज दिस, सेंस क्या आया, क्लॉकवाइज, इस ओर है ना, सो दिस व्हाट क्लॉकवाइज। अब आप वही कर लो, बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो प्लस व्हाट, आई सेंटर ऑफ मास, मतलब जो अभी आपने 2/5 आर स्क्वायर निकाला था, और ये स्फीयर था, इनटू व्हाट, ओमेगा, और ओमेगा पता है। इन केस इट हैड बीन ए प्योर रोलिंग, अगर ये प्योर रोलिंग होती तो फिर से आप रिलेशन लगा देते, जैसे मैंने सब कुछ यहाँ पे ओमेगा के टर्म्स में कर लिया। ओमेगा के टर्म्स में कैसे किया, प्योर रोलिंग वाला रिलेशन मैंने लिया होगा
क्योंकि मैंने स्पीड v को यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। सो दिस व्हाट प्योर रोलिंग वाला रिलेशन लिया होगा। आप मेरी बात समझ गए ना इसे, इज़ दैट क्लियर। सो ये इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आया। रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इसके अबाउट इतनी हुई, और अब इस पॉइंट की इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हुआ। आप थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी जब इसके रिलेटिव लेनी है तो ओमेगा इंटू आर आई, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट जो आएगी, जब ये v स्पीड से आगे भी जा रहा तो इस पॉइंट की नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो फॉल्ट इन दैट, बिकॉज दिस पॉइंट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड, दिस पॉइंट इज़ ऑन द बॉडी इटसेल्फ। तो बॉडी के किसी भी पॉइंट को वेलोसिटी के रोटेशन से मिलेगी, और बॉडी के इस पॉइंट की वेलोसिटी जितनी भी है इसके रिलेटिव उतनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो दैट बी ओमेगा इंटू आर, देयर इज़ नो फॉल्ट इन दैट। ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द पॉइंट इज़ व्हाट ऑन द बॉडी इटसेल्फ। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर v नहीं आएगा, मतलब प्योर रोलिंग हो या ना हो, यहाँ पे क्या होगा, v वाला पैरामीटर आएगा ही नहीं, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ये पूरा क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज का मतलब इट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब आपको सारे केसेस में एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन पता लग गया। इज़ दैट क्लियर, ठीक है ना। अब मैं आपको कल फिर से क्या होगा कि मैं हर एक ऑल्टरनेट डेज में मैं सीक्वेंस को मेंटेन करूँगा। सो टुडे आई हैव टोल्ड यू द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू how to apply the law of conservation of angular momentum, what is law of conservation of angular momentum, how to apply the law of conservation of angular momentum, ठीक है ना। So at the same time on the alternate days, on the same time on the alternate days I'll be before you, ठीक है ना। एक मैं अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, बट इन एवरी वीडियो I'll give you a new concept and with the new examples. Okay, all right.